अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं मुजरिम कौन और मैं शुएब अल्ताफ़ हूँ। नाज़रीन इकराम, फैसलाबाद का थाना साहियावाला, इसकी हदूद में एक ऐसा वाक़या पेश आया जिसने पूरे फैसलाबाद को हिला कर रख दिया। भाई के हाथों भाई का कत्ल। क्या वजह थी, किस लिए एक भाई ने अपने भाई को कत्ल किया, ये दिखाएंगे हम आपको आज के मुजरिम कौन। टीम मुजरिम कौन मौजूद है आज फैसलाबाद के थाना साहियावाला के इलाके में, जहाँ पे एक जवान मौत ने पूरे इलाके को हिला कर रख दिया। जवान मौत नाज़रीन किराम इस तरीके से कि एक बूढ़ा बाप है जिसके 2 बेटे और 2 बेटियां हैं। एक बेटा कत्ल हो जाता है और कुछ दिनों के बाद पता चलता है कि उस कत्ल में दूसरा बेटा यानी कि उसका सगा भाई मुलव्विस है, कातिल है। मेरे साथ मुद्दई मुकदमा और उस कत्ल होने वाले नौजवान अदनान के वालिद मौजूद हैं। तफसीलात उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, अपना नाम दस्यो जी। मोहम्मद फाजल। फाजल साहब दसो जी, की ये वाक़या होया है अदनान दा ते छोटे दा, की आपस दे विच मामला सी ते की तुहानू किद्दां पता लग्या कि तुहाडे बेटे दी जेहड़ा ओहदा कत्ल हो गया? ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਨਾ ਕਦੇ ਝਗੜੇ ਨਾ ਤੇ ਕਰਾਂ। ਨਮਾਜ਼ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਮਗਰਬ ਦੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਨਾ ਡੇਰੇ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਕਰ ਲਾਣਾ ਆਪਣੇ ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਵਾਲਾ। ਇਹ ਬਗਨੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਅਕਸਰ ਮਹਿਮੂਦ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਫਲ, ਹਾਂਜੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੋਰ। ਭਰੀ ਜਵਾਨੀ 'ਚ 5 ਵਕਤੀ ਨਮਾਜ਼ੀ ਨਫਲ 5 ਵਕਤ ਦਾ ਨਮਾਜ਼ੀ, ਰੋਜ਼ੇ ਵੀ ਰੱਖਦਾ ਮੁਕੰਮਲ। ਸਾਡੇ ਚੱਕ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਫੌਤਗੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਨਾਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਸੁਬਾਹ, ਭਾਵੇਂ ਦੁਪਹਿਰ, ਇਹਨੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਜਾਣਾ। ਇਹਨੇ ਖੁਦਾ ਤਰਸੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਬਾਬੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿਓ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ 2 ਹੀ ਬੇਟੇ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, 2 ਹੀ ਬੇਟੇ ਨੇ। ਤੇ ਅਦਨਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਕੰਮ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਹੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਹੋਣਾ, ਕਦੇ ਦਿਹਾੜੀ 1 ਜਾਂ 2 ਲਾਣੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦਿਹਾੜੀ ਦੱਪਾ ਕਿਤੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਲਾ ਲਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਜੇ ਲਾ ਲਿਆ ਤੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਲਾ ਲਿਆ, ਨਹੀਂ ਤੇ। ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੋਣੀ ਹੈ ਇਹਦੀ? ਇਹਦੀ ਉਮਰ 23-24 ਸਾਲ ਹੋਣੀ। ਅੱਛਾ, ਮਗਰਬ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨ ਨਿਕਲੇ ਹੋ, ਇਹ ਵੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ? ਨਹੀਂ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸੂਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਕਿਉਂ ਕਿਸੇ ਜੇ ਪੁੱਛਿਆ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਨਮਾਜ਼ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਵੇਖਿਆ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਇਲਮ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਨਮਾਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਘਰ ਆਏ ਜਦੋਂ ਤੇ ਕੀ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਲਦਾ ਹਯਾਤ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਵਾਲਦਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਆਂਦਾ ਸੀ ਰੋਟੀ ਮੈਂ ਖਾਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਆਇਆ ਨਹੀਂ, ਰੋਟੀ ਉਹਨੇ ਖਾਣੀ ਸੀ। ਤੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਆਖਣ ਲਈ ਉੱਧਰ ਐਲਾਨ ਵੀ ਹੋਣ ਡਿਆ ਮਸਜਿਦ, ਹਾਂਜੀ ਦੂਸਰੀ ਤੇ, ਹਾਂਜੀ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਚੱਕ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਤੇ ਆਹ ਸ਼ਾਇਦ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਮਹਿਫਲ ਦੇ। ਅੱਛਾ, ਮਹਿਫਲ ਹੋ ਰਹੀ? ਹਾਂਜੀ ਆਹ ਮਹਿਫਲ ਹੋ ਰਹੀ। ਰਾਤ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 11 ਸ਼ਾਹ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, 11 ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, 11:30 ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਵਾਲਦਾ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਹਮਜਾ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ, ਹਮਜਾ ਸੁੱਤਾ ਸੀ ਕੋ। ਹਮਜਾ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਉਠਾ ਉੱਠ, ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਦਾ ਪਤਾ ਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ ਹੈ, ਮਹਿਫਲ ਤੇ ਹੋ ਗਈ ਖਤਮ। ਇਹ ਗਿਆ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੋਂ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ, ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਹਾਂਜੀ ਪੁੱਛ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅਦਨਾਨ ਤੇ ਹਮਜ਼ਾ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਸੀ? ਹਮਜ਼ਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਛੋਟਾ ਹੈ ਉਤੋਂ? ਹਮਜਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ 11-12 ਸਾਲ ਛੋਟਾ, ਕਾਫੀ ਛੋਟਾ, ਹਲੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬੱਚਾ ਜਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੀ ਅਦਨਾਨ ਹੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਹਮਜ਼ਾ ਵੀ ਨਮਾਜ਼ ਰੋਜ਼ਾ ਕਰਦਾ? ਹਮਜਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੜਾ ਆਂਦਾ, ਹਮਜਾ ਕਦੇ ਉੱਠਣਾ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣੀ ਤੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਨਾ, ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਮੇਰਾ ਯਾਨੀ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਮਾਜ਼ ਇਹਨੂੰ ਹਮਜਾ ਨੂੰ ਆਹ ਬੜਾ ਹੀ ਆਖਣਾ। ਇਹਦੀ ਵਾਲਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਕੱਪੜਾ ਵੀ ਖਿੱਚਣਾ, ਇਹਨੇ ਬੜਾ ਕੁਝ, ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਹਾਂਜੀ ਪੈ ਜਾਣਾ ਕਰਨਾ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਬਲਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਲਦਾ ਨੇ ਉਠਾਇਆ ਛੋਟੇ ਨੂੰ ਕਿ ਉੱਠ, ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹਲੇ ਤੱਕ, ਦੇਖ ਉਹਨੂੰ। ਉਹ ਗਿਆ ਫਿਰ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਪੁੱਛ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅੱਜ। ਫਿਰ ਇਹ ਆਇਆ ਘਰ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਲਈ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ। ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਮੁੰਡੇ ਲੈ ਗਏ, ਜਿਹਦੇ ਲੱਗਾ ਸੀ ਪਹਿਰਾ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਆਇਆ ਪੁੱਛ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹਨੂੰ ਰਾਤ ਦਾ ਕੋਈ ਆਂਦਾ 1-1:30 ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਆ ਕੇ ਪੈ ਗਿਆ ਲੰਮਾ। ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਸੁਬਾਹ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਲੱਭ ਲੁੱਭ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਫਿਰ ਸੌਂ ਗਏ ਆਪਣੀ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ? ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸੁੱਤਾ ਮਾਲਕੋ ਡੇਰੇ, ਤੇ ਇਹ ਘਰ ਸੌਂ ਗਏ। ਨਾ ਆਖਿਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੈਠ ਕੇ ਸੌਂ ਗਿਆ, ਤੇ ਵਾਲਦਾ ਦੀ ਆਖੇ ਵੀ ਉਹ ਕਿਲੇ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਬੇੜਾ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਉਹਨੇ ਆਉਣਾ ਘਰ ਹੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਉਂਝ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਐਵੇਂ ਨੀਂਦਰ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਬਹਿ ਰਿਹਾ। ਕਿ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਇੱਕ ਖਿੱਚ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਰੋਟੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਅੰਮਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਰੋਟੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪਕਾਇਓ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਪਕਾਇਆ ਰੋਟੀ ਮੇਰੀ।
ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਲਮ ਦੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਪਈ ਆ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਆ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ। ਅਗਲੀ ਸਵੇਰੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਠੇ ਹੋ ਤੇ ਉਥੋਂ ਡੇਰੇ ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਘਰ ਆਏ ਹੋ? ਫਿਰ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਘਰ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਹਾਂਜੀ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਇੰਝ ਕਰੋ ਜਾਓ ਆਪਣੀ ਉੱਧਰ ਫੁੱਫੋ ਵੱਲ ਜਾ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਸੌਂ ਗਿਆ ਅਗਲੇ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਹ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਮਜਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ ਦੌੜ ਲਾਈਏ। ਫਿਰ ਆਹ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਬੰਦੇ ਟੱਕਰਦੇ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਆਹ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਮਜਾ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵਹਿਮ ਪੈ ਗਿਆ। ਵਹਿਮ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਓ ਬਗੈਰ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਕੋਈ ਮਹਿਫਲ ਕੋਈ ਕੀ ਉਹਦਾ ਸਿਸਟਮ ਸੀ, ਕੋਈ ਉੱਠਣ ਬਹਿਣ ਕਿਹਦਾ ਨਾਲ ਸੀ? ਉਹਦਾ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਫਲ ਹੁੰਦੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਹਾਂਜੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਨਮਾਜ਼, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਜਾਵੇ। ਸਿਰਫ ਨਮਾਜ਼ੀਆਂ? ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ। ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਯਾਰੀ ਦੋਸਤੀ, ਕਿਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੈਠ ਕੇ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਕਿਤੇ ਇਹ ਕਿਤੇ ਡੇਰੇ ਚਲੇ ਗਿਆ? ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾ ਡੇਰੇ ਜਾਣਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੈਠ ਕੇ ਬਹਿਣਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਉਵੇਂ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਜਾਂਦਿਆਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਕਈਆਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਆਖਣਾ ਰਾਣੇ ਆ ਜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਜਾ, ਉਹਨਾਂ ਆਖਣਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣਾ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਹੀ ਕਰਦਾ? ਹਾਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਕਰਦਾ, ਜਾਂ ਡੇਰੇ ਜਾਣਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਾਰ ਕਰਾਉਣਾ ਕੰਮ। ਅਤੇ ਘਰ ਰੱਖੇ ਹਨ ਦੋ ਲੈ ਲਏ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਉਹਨੇ ਪੱਠੇ ਅਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਣਾ ਵਜੂ ਕਰਨਾ ਕੱਪੜੇ ਬਦਲਣ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਤਕਰੀਬਨ ਲੱਭਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੀ ਕੋਈ ਵਾਕਫਕਾਰ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਪਾਈ, ਦੱਸਿਆ, ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾ ਵੇਖਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਦਾ ਇਹ ਦਿਲ ਦਾ ਹਾਂ ਗਿਆ ਨੈੱਟ 'ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾੜਿਆ, ਐਲਾਨ ਵੀ ਕਰਾਏ ਤੇ ਨੈਟ ਤੇ ਵੀ ਚੜਾਇਆ? ਹਾਂਜੀ ਨੈੱਟ ਵੀ ਐਲਾਨ ਵੀ ਹੋਏ, ਨੈੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਫਿਰ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਬੇਟਾ, ਕੌਣ ਲੈ ਗਿਆ? ਆਹ ਆਖਿਆ ਸਾਡੀ ਸਮਝੋ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਲਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਹੈ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਬੇਟੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਉਸ ਨਾ ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ 1 ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਫਿਰ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਲੱਭੋ ਕਿਲੋ ਫਸਲਾਂ ਫੁੱਲ। ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਲੱਭਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਭਨੇਵਾਂ ਡਿਆ ਸੀ ਦੱਸਣ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੋਂ ਹੀ ਇੰਝ ਹੋਏ ਨੇ ਚੱਕਦੇ, ਅੱਗੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਜਾ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਨੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਫਸਲਾਂ ਵੇਂਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਆਹੀ ਆਏ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਡੇਰੇ ਨੇ ਕੋਲ 2-3 ਉਹ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਵੇਖੇ ਸਾਰੇ। ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਭਨੇਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਨੀ ਉਹ ਡਿਆ ਦੱਸਣ, ਮਾਮੂ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪੱਕੀ ਸੜਕ ਹੈ ਉਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉੱਤੇ ਖਲੋਤੇ, ਇਹ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਰਸਤਾ ਕੱਚਾ ਡੇਰਾ, ਉੱਥੇ ਪਈ ਹੈ ਜੁੱਤੀ ਲੱਥੀ ਚੱਪਲ ਪਈ? ਹਾਂ ਚੱਪਲ ਪਈ ਹੈ। ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਭਾਈ ਹਮਜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਜੁੱਤੀ ਪਈ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕਿਹਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਗਾਂ ਹਮਜਾ ਆਂਦਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਹਨੇ ਆਖਿਆ ਇਹਦੇ ਭਾਈ ਦੀ ਹੈ, ਦਾਨੀ ਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਫਿਰ ਭਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਬਣਿਆ ਕੋਠਾ ਮਕਾਨ, ਉਹਦਾ ਹਾਂਜੀ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਗਏ ਨੇ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਲਾਸ਼ ਪਈ ਹੈ ਭਾਈ ਦੇ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਫਿਰ ਹਾਂਜੀ ਖੂਨ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਨੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਰੋ ਪਿਆ। ਆ ਕੋਈ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਤਾਂ ਜ਼ੁਲਮ ਹੀ ਐਸਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਐਸਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਨਮਾਜ਼ ਰੋਜ਼ੇ ਦਾ ਪਾਬੰਦ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਕੋਈ ਗਲਤ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਫਿਰ ਮਈਅਤ ਪਿੰਡ 'ਚ ਪਹੁੰਚੀ ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਸੀ? ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਏ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਸਿਫਤ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਆਂਦਾ ਸੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਤੇਰਾ ਬੇਟਾ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕੌਣ ਮਾਰ ਗਿਆ? ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਵਾਲਦ ਆ, ਉਹਦੀ ਕਮਰ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਬਾਂਹ ਲੱਥ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਵਾਨ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ੱਕ ਕਿਹਨੂੰ ਪਿਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਸ਼ੱਕ ਪਿਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਦੂਸਰਾ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਉਹ ਇਹਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ? ਇਹ 2 ਦਿਨ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਣੀ ਆਹੀ ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਧੋਂਦੇ ਕੱਪੜੇ ਰਹੇ ਆ, ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਸਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਪਿਆ ਜਿਹਨੇ ਉੱਥੇ ਖੜਿਆ। ਆਹੀ ਇਹ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਖੜਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਇੱਥੋਂ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਫੈਕਟਰੀ ਵੀ ਜਵਾਨ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਿਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹਾਂਜੀ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਤੁਰ ਕੇ ਆ ਜਾਣਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਹਾਂਜੀ ਬਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮਗਰ ਮਤਲਬ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਲਿਫਟ ਦੇ ਦੇਵਾਂ ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਜਾਵਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ? ਨਾ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਗਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਉਦੋਂ ਦਾ ਵਹਿਮ ਪੈ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਬਾਈ। ਇਹ ਖੜਿਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਨੇ ਖੜਿਆ, ਖਾਸ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਉਦੋਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਪਾਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗਿਆ ਫੋਨ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਖੜਿਆ ਆਪਣੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਖੜਿਆ ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਬਾਇਆ ਕਿਸੇ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਠੀਕ ਦਿੱਤਾ।
तो मेरा बेटा उंज नहीं हाँ जी जा सकता। ये बयान देंदे फिर 2 दिन बाद जिदन होया हाँ जी खत्म हो गया मैं कुल्लां दा। कुल्लां तो बाद एक आदमी ने मैनू दस्सिया भई उत्थे SSO साहब हैं या मुलाजम हैं, उन्होंने कन्नी गल पाई, उन्हें आख्या भी हमजा विच है पे। पुलिस वालियां नूं अपने तजर्बे तो थोड़ा जिहा आइडिया हो गया कि घर 'च ही कुछ मामला खराब हो सकता है। हाँ जी मामला खराब मैनू उन्हें आख्या कोई हाँ जी घर बिच लड़े लुड़े नहीं आपे बिच। मैं आख्या ना मेरे बेटियां दी कोई लड़ाई झगड़ा कोई नहीं। मैं आख्या मैं हत्थे पैर मेरे नाल रहिंदा ही जनान। मैं आख्या कोई ऐसी वैसी गल होंदी ते मेरे नाल करदा ना मेरा बेटा। मैं आख्या कोई गलबात नहीं। इन्हें पता नहीं की लालच दिता है मेरे बेटे नूं, किवें इन्हें खड़िया किदे नाल जाने घलाया, ये अपने आप नहीं आया। ये कोई ऐसी वैसी कोई मैल होने पता नहीं इन्हू कि बंदे जां पट्टी दित्ती है पढ़ाई है जां इहदे की दिल विच ख्याल आया जेह्ड़ा इन्हें बेटे मेरे नाल इंज होया जुल्म कीता। दसो कि एडे 2 दिन गुजरे फिर कुल्लां दा खत्म वाले दिन तक डेड बॉडी आ गई, तदफीन हो गई, दफनात ज़ाहिर पूरे पिंड दे विच एक कोहराम मचिया होना है, सारे बंदे परेशान होने ने, हर अख रो रही होनी है। इस 2 दिनां दे विच जेह्ड़ा छोटा हमजा है ਇਹ ਵੀ मतलब ਉਹ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਰੋਣ ਪਿੱਟਣ ਦੀ ਦੁਖੀ ਹੋਣ ਦੀ ਜਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰਿਹਾ? ਕਦੇ ਕੱਢਦਾ ਸੀ ਤੇ ਕਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਦੇ ਆ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯਾਨੀ ਤੇ ਇੱਕ ਅੰਦਰ ਜਾ ਪੈਣਾ ਲੰਮਿਆਂ ਪੈ ਰਹਿਣਾ ਆਖਣਾ ਮੈਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਦਰਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਇੰਝ ਦੀਆਂ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਗੱਲਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁੜਕੀ ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਾਨੂੰ ਖੁੜਕੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕੁ ਮਾਲੂਮ ਹੁੰਦੀ ਗਈ। ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਆਹ ਕੀਤਾ ਟੋਣਾ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੌਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਲੱਭਦੇ ਰਹੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਸਾਰਿਆਂ ਲਏ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਵੀ ਬਿਆਨ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਹਮਜਾ ਵਿੱਚ ਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਇਹਦਾ ਦਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ। ਪੁੱਛਣਾ ਤਾਂ ਸੀ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਜਾੜਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ? ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰਾ ਵਿਛੜ ਗਿਆ ਤੁਰ ਗਿਆ ਦੁਨੀਆ ਮੇਰੇ ਕੀ ਆਖੇਗਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਆ ਬਾਪ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਨਾ ਘਰ ਪਾਇਆ ਨਾ ਲਾਇਆ। ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਤੁਹਾਡੀਆਂ 2 ਬਾਹਾਂ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਬਾਂਹ ਵੱਢੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਨੂੰ ਫਾਲਜ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹਨੇ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਉਹਨੂੰ ਕਾਤਲਾਂ ਵਾਲੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਲਾਮੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਸਮਝ ਸੋਚ ਲਾ ਤੇਰਾ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਹੁਣ ਰਹਿ ਗਿਆ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਖਿਆਲ ਕਰੀ ਇੱਕ ਤੇਰਾ ਬੇਟਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਇਹ ਹੋਈ ਆਈ ਇਹ ਤੇਰੀ ਬਾਂਹ ਇੱਕ ਰਹਿ ਗਈ ਇੱਕ ਤੇ ਲੈ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਸੋਚਿਆ ਪੰਜੀ ਪਿਆ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾ ਹੁਣ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਸਹਾਰਾ ਉਹ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਹਾਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਜੇ ਜਵਾਨ ਬੇਟੇ ਮੇਰੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਜਾਣਾ ਦਾ ਬਸ ਨਿਕਲੇ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਾ ਦੇਦਾ ਅਸੀਂ ਬੇ औलाद देंगे। नाज़रीन इकराम, बहुत मुश्किल होता है एक उस बूढ़े बाप से बात करना, उसके जज्बात को समझना जिसकी कुल कायनात ही लुट जाए, जिसके 2 बेटे हों और एक कत्ल हो जाए और 2 दिन के बाद पता चले कि कातिल उसका दूसरा बेटा था। क्या ऐसे बाप के ज़ख्मों पे कोई बात, कोई तसल्ली, कोई लफ्ज़ मरहम रख सकता है इसके ज़ख्मों पे? ऐसी कोई बात जो इनको तसल्ली दे सके? बिल्कुल भी ऐसा कोई पुरसा नहीं है जो इनको दिया जा सके। एक बाप ने अपने एक बेटे को खोया, नाहक कत्ल किया और दूसरे बेटे ने कत्ल किया। इस बाप के लिए पूरी कायनात लुट गई है जो अभी इस शशोपंज में है कि मैं अब फ़ैसला क्या करूँगा। क्या मेरी पिदरी शफ़क़त जो है वो आड़े आएगी कि एक कातिल को इंसाफ के कटहरे में खड़ा करना है या माफ़ करना है? नाज़रीन, टीम मुजरिम कौन मौजूद है थाना साहियावाला में और बात हो रही है उस वारदात की, उस कत्ल की जिस पर तमाम इलाका अश्कबार है। एक बाप, एक बूढ़ा मज़लूम बाप जिसके 2 बेटे हैं, एक कत्ल हो जाता है और तकरीबन 48 घंटे के बाद पता चलता है कि दूसरा कातिल है। यहाँ फैसलाबाद पुलिस को दाद न देना ज़्यादती होगी क्योंकि पुलिस ने इब्तदाई तौर पर ये ब्लाइंड मर्डर केस जो है इसको पेशा वाराना महारत से
ऐसे ट्रेस आउट किया कि तमाम लोग वर्ताए हैरत में गिरफ्तार हो गए। हमारे साथ मौजूद हैं SHO थाना साहियावाला सब इंस्पेक्टर राय तारिक, उनसे मज़ीद तफसीलात जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर बताइएगा ये क्या केस था, किस तरीके से रिपोर्ट हुआ पुलिस को, पुलिस ने जो रिस्पॉन्स इस पे किया वो क्या था, कैसे ये ब्लाइंड मर्डर आपने जो है वो ट्रेस आउट कर लिया? वालेकुम अस्सलाम जी। ये हमें 17 तारीख को एक 15 पे कार मसूल होती है कि गुमशुदा शख्स जो है उसकी लाश जो है वो खेतों में पड़ी हुई है। तो मैं और मेरी टीम जो है वो वहाँ पे रिस्पॉन्ड करते हैं। PFC की टीम को कॉल किया जाता है, तो वहाँ से शवाहद इकट्ठे किए जाते हैं। तो बिल्कुल ये हमारे लिए ब्लाइंड था। मौका पे हमें ऐसा कोई क्लू नहीं मिलता कि जिससे ट्रेस आउट हो सके कि ये शख्स को किसने कत्ल किया और किसको नहीं कत्ल किया। तो फ़ौरन से पहले जो है उसकी CDRs ली जाती हैं और उसको जो टेक्निकल वसाइल को बरोकार लाया जाता है। तो जब उसके फ्रांसिक की जाती है, उसके मोबाइल को चेक किया जाता है, तो मोबाइल बिल्कुल ब्लैंक नज़र आता है। कुछ हक़ायक़ जो हमारे सामने नज़र आते हैं कि जो मकतूल था वो इंतहाई सीधा साधा आदमी था, कुछ ऑफ माइंडेड नहीं था, लेकिन अपने काम से काम रखने वाला और अपने घर में रहने वाला बंदा था। उसकी कोई सोशल गैदरिंग नहीं थी। तो जब हम देखते हैं कि हमें कोई क्लू नहीं मिल रहा और जो हमारा कहानी का जो सिरा है वो जहाँ से शुरू होता है वहीं पे ख़त्म हो जाता है आके, तो हमने अपने जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं उनको यूज़ करना शुरू किया। तो हमने अपने मुखबिर पैदा किए वहाँ पे कि हम जो है इसको किसी तरीके से इसको ट्रेस आउट कर सकें। तो कुछ चीज़ें जो कुछ हक़ायक़ जो हमारे सामने आया वो यही आया कि एक तो ये बिल्कुल सीधा साधा आदमी था, नमाज़ी परहेज़ी आदमी था। इसकी कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ नहीं थी कि जिसके हमको शक पड़े कि ये कोई ऐसी बुराइयों में मुलव्वस था कि जिससे हम जो है वो खुरा इसका कत्ल का कहीं और जाए। तो हमारा शुरू से लेके जो शक था वो इसके मकतूल के भाई पे था। तो मकतूल के भाई के और जो दोस्तों जिन्होंने ट्रेस आउट की थी लाश, तो उससे मुख्तलिफ़ क्वेश्चनिंग की गई। तो उसके बाद जो उसका भाई था वो कंफ्यूज होना शुरू हुआ। तो हमारा शक का जो दायरा है वो मज़ीद बढ़ता गया। मज़ीद इंटरोगेट करने के बाद उसने जो मान दिया कि किस तरह उसने कत्ल किया है जायदाद के लालच में आके। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे लिए विद इन फ्यू डेज़ हमने इसको ट्रेस आउट किया, जो हमारे लिए बिल्कुल ब्लैक था। ये अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा किया जाए ये कम है। तारिक भाई, गाँव में नफसा नफसी का आलम नहीं होता, तकरीबन तमाम लोग एक दूसरे को जानते हैं, उनको पता होता है कि ये घर से मगरिब की नमाज़ पढ़ने के लिए निकला और फिर वापस नहीं आया। आपने जब तफ्तीश की, इंटरोगेट किया, लोगों से बातचीत की, तो क्या किसी ने इनको नहीं देखा लास्ट टाइम? एक होता है कि लास्ट सीन, कि आपने कब इस शख्स को देखा, लोगों से आपने बात की होगी, पूछा होगा कि किसी के साथ जाते हुए देखा गया हो। ये लेके कैसे गया अपने भाई को मर्डर स्पॉट पर और किस तरीके से इसने जो है वो एग्जीक्यूट किया? इसने ये भाई जो था इसका ये कुछ दिन यहाँ पे केमिकल फैक्ट्री है फैडमिक में, वहाँ पे काम करने के लिए गया था। तो 7-8 दिहाड़ी लगती, वो वहाँ पे डेली वेजेस पे ये था। तो इसने जो है ये भी काम करता था वहाँ पे। तो इसने इसको झांसा दिया और झांसा ये दिया कि आज हमने पे लेने के लिए जाना है तो आप रुकें। ये नमाज़ पढ़ के बाहर निकलता है और घर के बाहर वो खड़ा हो जाता है। वो बाइक पे इसको बिठा के जहाँ पे सलार वाला एक छोटा सा कस्बा है वहाँ पे ले जाता है। वहाँ पे जाके ये बोतल पीते हैं, स्ट्रिंग की बोतल। वहाँ पे इसने ऑलरेडी जो है वो एक चीज़ मैनेज करके जहाँ पे कत्ल किया वहाँ पे छुरी लेकर रखी हुई थी उसने। तो वहाँ पे छुरी रख के ऑलरेडी चला गया होता। बोतल पीने के बाद उसने वहाँ पे जो है वो नशे वाली गोलियाँ जो होती हैं, जो ख्वाब आवर गोलियाँ होती हैं, कहीं से इसने मैनेज की, आई डोंट नो कहाँ से मैनेज की, और वो उसने अंदर डाल दी और उसको बोतल पिलाई। वो बिल्कुल सीधा आदमी था। उसे जाकर वहाँ पे ऑन स्पॉट लेके गया। वहाँ पे उसके गले में फंदा डाला। फंदा डालने के बाद वो कुछ छोटे कद का था, इसका कंपेरेटिवली कद इसका बड़ा था, उसका छोटा था। उसको इसने ज़ोर से, और वो हाथों से भी थोड़ा सा माजूर था उसके, जिस तरह होता है कि एक पावरफुल पूरा हेल्दी और एक्टिव नहीं था। ये उससे 10-11 साल छोटा होने के बावजूद जिसामत में उससे बड़ा नहीं एक्टिव था। वो हेल्दी काम शाम अपने घर के करता था, लेकिन उसकी एक दो कमज़ोरियाँ थी जो जिसको ये इसने बाद में बताया हमें कि ये मुझे सिर्फ पता था और बाकी किसी को नहीं पता था कि ये एक हाथ से ज़ोर लगाता है, दूसरे हाथ से ज़ोर नहीं लगाता। उसी कमज़ोरी का उसने फ़ायदा उठाया, गले में फंदा डाला, उसको बेहोश किया, बाद में उसको घसीट के कमरे में ले गया और वहाँ पे उसके गले पे खुली छुरी चढ़ा दी। तारिक भाई, एक होती है कत्ल करना और एक होती है ब्रूटैलिटी, जिसको हम कहते हैं कि ये इंतहा थी जुल्म की, कि
उसकी जान लेने के बाद भी उसको सब्र नहीं आया और उसने उसका गला काट दिया छुरी से। क्या मोटिव क्या बताता है कि क्या सिर्फ जायदाद का तनाज़ा था इनका? क्या एक माँ बाप की औलाद जो है वो सिर्फ प्रॉपर्टी के लिए, ज़मीन के लिए इस कदर ज़ालिम हो सकते हैं कि उसको हम माँ जाया कहते हैं? अब एक ही वालिदैन की औलाद इतनी ज़ालिम हो सकती है कि वो इस तरह से उसका गला काट दे? एज बिंग ए प्रोफेशनल पुलिस ऑफिसर ये सूट तो नहीं करता, लेकिन जब ये इस चीज़ को सोचते हैं तो हमारी आंखें अशबार हो जाती हैं कि जिस तरह भाई ने ब्रूटलिटी के साथ उसको कत्ल किया। तो और जब आपके जहन में हो कि यार मैंने जो है वो बेस्ट होना है और मैंने अपना जो है वो नफ्सानी ख्वाहिशात को बेहतर तरीके से पूरा करना है, तो सिचुएशन ये थी कि इनकी जो 142 है वो फेडमिक में आ गया है। वहाँ पे जो प्रॉपर्टीज़ के रेट्स हैं वो काफ़ी बेहतर हो गए हैं। तो ये वहाँ पे इनकी गांव के साथ मुल्का ज़मीन थी, वहाँ के रेट बढ़े हुए थे। ये चाहता था कि ये बेच दे, लेकिन इसका भाई और इसका जो बाप था वो उसको अपोज़ करते थे कि हमें अभी हमने पहले शादियाँ करनी है, अपने सेटल होना है, उसके बाद बेच के इसका कोई बेहतर सदेबाब करेंगे। लेकिन ये जल्द अमीर होना चाहता था। ये अमीर होने की ख्वाहिश जो है वो इसको इस इंतहाई कदम पे ले गई। शॉर्टकट ढूंढते हुए, जल्दबाजी करते हुए इसके दिमाग ने ये प्लानिंग की कि मैं अपने भाई को रास्ते से हटा दूं, बड़ा कांटा निकल जाएगा तो बाप को इंसान कन्विंस कर ही लेता है। अच्छा ये बताइएगा कि ये जो 2 दिन थे एटलीस्ट तकरीबन 48 घंटे, ये क्या बाकायदा पूरी अदाकारी करता रहा है गमज़दा होने की, रोने की? क्या ज़ाहिर है आप इंटरोगेट कर रहे थे, आपकी नज़रों के सामने से ये बार बार गुजरा होगा, तो क्या इसने बाकायदा पूरी एक्टिंग की है अपने जो वेल प्लान्ड मर्डर था उसके एग्जीक्यूट करने के बाद? बॉडी लैंग्वेज में, अदाकारी में ये पूरा था? डेफिनेटली इसने अदाकारी की काफ़ी कोशिश की। बाज़ ऐसी तफ्तीश की बारीकी होती हैं जो हम पब्लिकली बता नहीं सकते, इसलिए कुछ चीज़ें जो है वो हाइड करने ज़ाहिर है आपका प्रोफेशन है, आपका रोज़ का काम है, आपकी स्टेटमेंट से कुछ क्रिमिनल्स जो हैं वो खबरदार हो सकते हैं। लेकिन क्या साइकोलॉजिकली आपने इसको जो है वो पहले ट्रेस आउट कर लिया था, या फिर जो टिपिकल एक पुलिसिंग होती है वो आजमानी पड़ी इससे कन्फेस करवाने की? नहीं, टिपिकल हमें पुलिसिंग नहीं यूज़ करनी पड़ी। जो इसकी हरकत सकना थी वो मशकूक थी पहले दिन से। ये पहले दिन से ही हमारे रडार में था, हम इसको प्रॉपर मॉनिटर कर रहे थे। हमारे जो सोर्सेज थे, जो हिडन सोर्सेज थे जिसको आप मुखबिर कहते हैं, उन्होंने हमें आगाह किया था, मुख्तलिफ इसके बारे में मालूमात दी थी। कुछ लोगों ने ये भी कहा था कि भाई, और इसकी सबसे हमारे शक का जो सबसे मेन चीज़ थी वो ये थी कि जो हमें गांव से पता चली, मुख्तलिफ लोगों से पता चली, ये अपने बाप और भाई के अलावा किसी से ट्रस्ट नहीं करता था। और बेसिकली ये इंसान का कत्ल नहीं, ये एक ट्रस्ट का कत्ल है जो भाई को भाई पे था और जो इसने किया। रिश्ते का कत्ल है, भरोसे का कत्ल है। तारिक भाई, मर्डर वेपन इसने रिकवर करवा दिया है या अभी तक वो पुलिस के हाथ नहीं लग सकता? है हमारे पास है, मर्डर रिकवर करना है। अभी हमने इन्वेस्टिगेशन पूरी होनी है, तो इंशाल्लाह बेहतर करेंगे, बेहतर तरीके से इसको डील करेंगे और मजबूत शवायद जो है वो इकट्ठे करके इसको करवा की सलाह दिलवाएंगे। तारिक भाई, सज़ा इसको नहीं मिलेगी, इसके वालिदैन को मिली, जिनके 2 बच्चे थे। एक मर्डर हो गया, दूसरा मर्डरर बन गया। और जाहिर है वो बूढ़ा बाप जिसकी आंखों में हमने आज नमी देखी, जिसके कपकपाते हुए होंठ हमने देखे, जिसकी बेबसी शायद अल्फाज में बयान नहीं की जा सकती। ये वाकई में पूरी इंसानियत का कत्ल था, ये रिश्तों का कत्ल था, ये भरोसे का कत्ल था। बीइंग SHO, अब क्या समझते हैं कि हमारे गांव देहात मोहब्बत के लिए, भाईचारे के लिए, जॉइंट फैमिलीज़ के लिए मशहूर हुआ करते थे। यहाँ पे अगर पूरे गांव में कोई एक जवान मौत भी हो जाती थी तो पूरा गांव सोग में डूब जाता था। अब हमारे मुआशरती रवैये किस जानिब चल पड़े हैं? वजह क्या है? क्यों हम इस कदर नफसी में जो है वो जकड़े गए हैं कि हमें अपने रिश्तों के तकद्दुस का ज़रा भी ख्याल नहीं, हमें अपने मुआशरती रवैये नज़र नहीं आते, हम क्यों दरिंदगी पे उतर आए हैं? इसके मुख्तलिफ शवायद वजूहात हैं जो कि एज ए होल सोसाइटी को इस चीज़ पे कवर करना चाहिए। मेरा ख़ुद ताल्लुक़ जो है वो देहाती बैकग्राउंड से है, तो मैं फैमिली में बड़ा हूँ। तो मेरे लिए इंतहाई दुख की बात थी जब मैंने ये स्टोरी सुनी और ये स्टोरी सारी जो है वो ब्रेकअप की कि इसने किस तरह प्लान कर कवर किया। और जज्बातियत हमारे जो है डिपार्टमेंट में वो ना होने के बराबर है, क्योंकि हम अगर जज्बाती हो गए तो हम वो कोई मुकदमा पर ट्रेस नहीं कर सकते। लेकिन ये लम्हे ऐसे आए कुछ जहाँ पे ट्रेस आउट करते हुए कि जहाँ पे मेरा जज्बाती होना जो है वो और एक नेचुरल था, और मैंने बड़ी मुश्किल से अपनी जो है वो आंखों पे कंट्रोल रखा कि आंखों कहीं बह ना जाए। यूनिफॉर्म पहने हुए ज़ाहिर है जज्बात की गुंजाइश नहीं होती,
लेकिन जब आप उसके बाप को देखते थे, जब उस बेबस बूढ़े बाप को देखते थे, तब ज़ाहिर है इंसान तो हम हैं ना, धड़कता हुआ दिल तो अंदर है, फैमिलीज़ हम रखते हैं, रिश्ते हम रखते हैं, तब क्या इंटरनल फीलिंग्स क्या आती थी कि इस बाप का अब क्या होगा? डेफिनेटली बाप के लिए तो बड़ा सदमे की बात है कि एक उसका बेटा जो है वो कत्ल हो गया है, और जो मासूम था, डेफिनेटली आप उसको मासूम कहेंगे कि उसका कोई ऐसा कोई बुरा काम नहीं था, 5 वक्त नमाज़ी था और जो माँ बाप कहते थे वो करता था। और जो एक बेटा है वो अपने नफ्स के हाथों मजबूर होकर उसका कातिल बन गया। उस बाप के लिए बड़ा मुश्किल टाइम है, उसकी दुआएं की जा सकती है कि अल्लाह उसको सब्र दे। और एज ए सोसाइटी हमें सोचना चाहिए कि हमारे जो नॉर्म्स हैं वो किस तरफ जा रहे हैं और बेहतर तरीके से उनको डील करना चाहिए। बाकी लोगों को क्या कहेंगे जो आपको देख रहे हैं इस वक्त, ख़ास तौर पे वो लोग जो रूरल एरियाज़ में रहते हैं, जो अभी भी देहात में, कहते हैं कि नेचर जो है वो देहात में बहुत करीब होती है, अल्लाह ताला देहात में ज़्यादा करीब होता है लोगों के, क्या कहेंगे लोगों को? क्या अपने बिहेवियर में क्या चेंज ला सकते हैं हम? किस तरीके से अपनी ज़िंदगी में थोड़ा सा बदलाव ला सकते हैं ताकि ऐसे सानेहात से बचा जा सके? इंसान की जब 24 घंटे बंदा काम करता है तो कुछ ऐसे लम्हे आते हैं कि जब अपने ऊपर बंदा कंट्रोल नहीं रखता। जो मेरा एक्सपीरियंस है तो 5 मिनट के लिए सुनना तरीका भी है। आपको डेफिनेटली आप सल्लम ने फरमाया था कि जब आपको गुस्सा है जो आप बैठ जाएं, खड़े हो तो बैठ जाएं, बैठे हो तो लेट जाएं, नमाज़ पढ़ें। बाकी इंसान को चाहिए कि आप कुछ देर के लिए अपने जो है वो गुस्से को कंट्रोल में करे। जो नफसानी ख्वाहिशात जो हैं ये पूरी होती रहेंगी। इंसान जब तक ज़िंदा है उसकी न ख्वाहिश कभी पूरी हुई है और ना कभी पूरी होगी। ये उसका नेचुरल फिनोमेना है, उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन अल्लाह ताला ने हमें सबक दिया है कि वहाँ पे हम जो है वो अपने गुस्से को, अपने नफसानी ख्वाहिशात को कंट्रोल में करें, तो इस तरह के वाक़यात मज़ीद उनसे रोका जा सकता है। नाज़रीन इकराम, सब इंस्पेक्टर राय तारिक हमारे साथ मौजूद थे, SHO हैं थाना साहियावाला के, और इस फ़र्ज़ शनास पुलिस ऑफिसर ने एक पुलिस ऑफिसर होने का हक़ अदा किया। एक वो कत्ल जिसमें पुलिस तकरीबन एक बंद गली में दाखिल हो गई थी, जो एक ब्लाइंड मर्डर था, उस पर पुलिस ने जब तफ्तीश शुरू की, कड़ियाँ मिलाई, तो फिर उस कत्ल का खुरा उसी घर में निकल आया। सगा भाई अपने भाई का कातिल निकला। ये एक पुलिस ऑफिसर का जो ड्यूटी थी, जो फ़र्ज़ था, वो उन्होंने निभाया। लेकिन उसी वर्दी के अंदर एक धड़कता हुआ दिल भी है, एक इंसान भी है, एक बाप, भाई, बेटा मौजूद है। और उनका ये कहना था कि इनकी जॉब के अंदर ड्यूरिंग सर्विस बहुत कम लम्हे ऐसे आए हैं कि जब जज्बाती हुए हैं, जब इनकी आंखें नम हुई हैं और उस बूढ़े बाप के गम को देखकर अपने आप पर काबू रखना मुश्किल था। इकराम, इंस्पेक्टर रिजवान सुलेमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन है थाना साहियावाला के, और टीम मुजरिम कौन आज बात कर रही है साहियावाला के इलाके में पेश आने वाले एक ऐसे अफसोसनाक वाक़े पे जिस पे पूरा इलाका जो है वो अश्कबार है। हर शख्स जो है वो एक अफसोस और गम की कैफियत में है कि एक जवान मौत, एक ऐसा नौजवान जो अपने वालिदैन का सहारा था, जो नमाजी परहेज़गार नौजवान था, उसे इस तरह से नाहक कत्ल किया गया। पुलिस को ये इत्तला कैसे मिली, कैसे पुलिस ने इस पर रिस्पॉन्ड किया, और फिर 72 घंटे के कलील अरसे में इस ब्लाइंड मर्डर को किस तरीके से ट्रेस करके कल्प्रिट को गिरफ़्तार किया, कल्प्रिट था कौन, ये तफसीलात जानते हैं इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर बताइएगा ये क्या मामला है, किस तरीके से जो है रिपोर्ट हुआ आपको, और फिर जो है रिस्पॉन्ड है पुलिस का वो क्या था इस पर? ये मोरखा 16/9/25 को 15 पे कॉल चली कि एक नौजवान उसकी गला कटी हुई लाश जो है वो बरामद हुई है। तो यही जो मौके की जो मुकदमे की नोयत थी वो हीनियस कैटेगरी का था। तो आईजी साहब ने एक मेकनिज़म बनाया हुआ है कि हीनियस क्राइम की उसी वक्त से उसकी जो है ना वो शुरू हो जाती है, मॉनिटरिंग शुरू हो जाती है। तो उन आईजी साहब के अहकामात की रोशनी में RPO साहब ने, CPO साहब ने जो है ना फौरी तौर पे जो एक्शन का आगाज़ किया। SP साहब जो थे उनके वो खुद मौके पे आए, DSP साहब वो खुद मौके पे आए, उन्होंने एक टीम बनाई, और इसको जो हमने जो इब्तदाई इसके जो थे ना तफ्तीशी जो शवाहिद इकट्ठे करने होते हैं, क्राइम सीन को प्रिजर्व करना होता है। टीम ने पहुंचते ही सबसे पहले मेरे ख्याल में प्रोफेशनलिज्म भी पुलिस का यही होता है कि वो क्राइम सीन को प्रिजर्व करते हैं। तो आप जब पहुंचे तो क्या उधर माजरा क्या था? क्या जिस तरह एक टिपिकली होता है कि एक मर्डर हो जाए वहाँ पे वो लोगों का हुजूम था, या फिर पुलिस जो है वो फर्स्ट रिस्पोंडेंट के तौर पे जब पहुँची है तो वहाँ पे पुलिस के अलावा सिर्फ चंद ख़ास लोग ही थे?
उधर पब्लिक थी, लेकिन हमारा जो अभी जो अवेयरनेस है काफ़ी है। हमारे जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर उधर गए हैं, सब इंस्पेक्टर साहब गए हैं, उन्होंने कार्डन ऑफ किया हुआ था। तो जो उधर उस एरिया में कोई पब्लिक जो है ना वो इंटर नहीं हुई। तो पीएफएस टीम को बुलाया, उन्होंने भी बड़ी प्रोफेशनलिज्म से अपना जो है ना उधर सारे जो एविडेंस है वो इकट्ठे किए। और एसपी साहब ने, डीएसपी साहब ने बहुत इसको जो इसका जो था ना मौके पे जो चीज़ें जो सूरत हाल थी उसको बड़ी बारीकबीनी से उसका जो है ना जायज़ा लिया। और जो थी ना उसके गले को फंदे। सर एक कथा कलामी की माफ़ी चाहता हूँ। एक मैकेनिज़्म होता है कि पुलिस ऑफिसर्स जो हैं जिनका रोज़ाना क्रिमिनल से, क्राइम से वास्ता रहता है, वो देख के उनको ऑलमोस्ट जो है वो पता चल जाता है कि ये अभी ताज़ा ये वारदात हुई है, तकरीबन 24 घंटे गुजर गए हैं, तकरीबन 48 घंटे गुजर गए। जब आप क्राइम सीन पे पहुंचे तो क्या वो जो डेड बॉडी है वो क्या बता रही थी कि इस शख्स को अभी ताज़ा कत्ल किया गया है या तकरीबन 24 घंटे गुजर चुके हैं? उसका जो ब्लड है वो जो वो हो गया हुआ था, जम गया हुआ था। तो इससे अंदाज़ा हो गया कि बॉडी जो है ना कत्ल का कोई 24 घंटे से ज़्यादा टाइम गुजर गया है। तो जब उसको फिर जो है ना हमने सबसे पहले ये चेक किया कि इसका जो है ना किस चीज़ किसका मफाद हो सकता है इसके कत्ल में। तो जो इलाके के लोग हैं सभी ने बताया कि ये जो है ना एक शरीफ आदमी था, इसका किसी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा तनाज़ा नहीं था, किसी के साथ इसकी कोई ऐसी दोस्ती भी नहीं, और किसी के साथ इसका वो जो है ना जिसे कहते हैं ना कि इसकी कंपनी भी किसी के साथ नहीं थी। घर या दुकान अपने जाना, जो ज़मीनों पे जाता था, घर जाना, ज़मीन और मस्जिद, तो इसके यही इसकी रूटीन थी। तो इसमें हमें कोई क्लू नहीं मिल रहा था कि इसका जो है ना किस ये मर्डर की वजह जो है वो क्या हो सकती है। इतना मुश्किल होता है रिजवान साहब, आपके पास एक डेड बॉडी है और पूरा गांव इस बात की गवाही दे रहा है कि हमने कभी इस शख्स को किसी से झगड़ते हुए नहीं देखा, ये नमाजी था, इसका ना कोई प्रॉपर्टी का मसला है, ना इसका कोई ऐसी कंपनी थी जिसे हम कह सकते हैं कि वो आवारा लोगों में बैठता था और इसका किसी से झगड़ा हो गया हो, और ब्लाइंड आप एक बंद गली में दाखिल हो चुके हैं। फिर क्या ऐसा सिरा आपके हाथ में आया कि जिसकी लीड को फॉलो करते हुए आप जो है कल्प्रेट तक पहुँचे? इसमें जो ना इनिशियली तो हम सब क्लू लेस थे, कोई क्लू नहीं था। तो फिर अभी जदीद टेक्नोलॉजी है, अफसर हमारे डिपार्टमेंट ने हमें दी हुई है, तो उसकी मदद से हमने फिर जो है ना इसका जो डाटा है, जो लोकेशन है, उसकी फौरी तौर पे एसपी साहब ने जो है ना जियो फेंसिंग करवाई। तो ये जो टूल्स हैं ना इनकी मदद से फिर हमें बहुत वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिली, और उस जो एविडेंस मिला ना उसको ट्रेस करते करते फिर हम जो है ना असल कल्प्रेट तक जो पहुंचने में कामयाब हुए। और जब असल कल्प्रेट जो है ना उसको इन्वेस्टिगेट किया और सारा जो था ना ये अनर्थ किया, तो बहुत सारे गांव के लोगों को, सभी को, पब्लिक को बहुत ज़्यादा शौक़ लगा। रिजवान साहब, मैं यही पूछना चाह रहा हूँ, हमारे नाज़रीन को बताइएगा कि क्या रिस्पांस था लोगों का, आप को क्या फ़ील हो रहा था उस वक्त जब आपको ये पता चला कि ये मकतूल का एक ही भाई है और वही इसका कातिल है? सीन क्या था, लोगों का रिस्पांस क्या था? इलाका मकीन जो है, जाहिर सी बात है वो एक तरह से शील्ड बन जाते हैं ऐसे लोगों के आगे कि नहीं नहीं ये नहीं हो सकता। कैसे उनको कन्विंस किया? क्या ऐसे ठोस शवाहिद थे जिनकी बुनियाद पर आपने उनको हाथ डाला? और जब हमने फॉरेंसिक एविडेंस सारा जो निकाल के ले आए तो वो अनडिनाइबल था। तो लोग जो थे वो भी शाक में चले गए कि किसी को वो यकीन करने के लिए पहले तो तैयार नहीं थे कि ऐसा हो सकता है। कुछ ने ये भी समझा होगा कि पुलिस ने बस ऐसे जो है ना अपनी जान छुड़ाने के लिए इसके ऊपर कत्ल डाल दिए, लेकिन वो हमने पूरी जो ये कल्चर है रिजवान साहब के, पुलिस को जब लोग ब्लेम करते हैं तो वो कहते हैं कि जी पुलिस, वो पंजाबी में अक्सर ये जुमला सुनने में मिलता है कि जी इन्हों को अपना काम होंदा नहीं तो हुण मकतूलों के घरदियां नूं तंग कर रहे हैं। ये वाला जो ख़तरनाक किस्म का एक बैक फायर करते हैं ये चीज़ें, जब अगर खुदा ना खास्ता आपके पास ये सॉलिड एविडेंस, सॉलिड लीड ना होती तो अक्सर ऐसा होता है कि ये चीज़ें बैक फायर कर जाती हैं। पुलिस डिपार्टमेंट को जब बड़ी रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ता है। क्या जब आपने इनको उठा लिया फिर और इंटरोगेट किया तो आराम से इन्होंने तस्लीम कर लिया या फिर उसके लिए भी आपको मेहनत करना पड़ी? नहीं, उसके लिए भी हमें मेहनत करना पड़ी, और जो इसकी फैमिली को भी कन्विंस करना पड़ा कि ये पॉसिबिलिटी है, ये इस डायरेक्शन में चीज़ जा रही है। तो ये है कि फिर पहले तो उनके लिए भी ये यकीन करना मुश्किल था, आखिर वो बाप है, माँ है, भाई हैं, बहन, वो तो इसके लिए मुश्किल हो जाता है। लेकिन ये है कि उन्होंने भी हमारे साथ फिर जो ना कोऑपरेट किया। उनका भी था कि जो भी
जो भी है असल कल्प्रेट जिसने ये जुर्म किया है, खा कोई भी है, उसे सामने आना चाहिए। तो हमने फिर इसको जो सारे एविडेंस सब सामने लेके आए, तो जो वो उसने मुलज़म जो था उसके पास भी कोई रास्ता नहीं था कि वो इनकार कर सके। ये तो उसके जो फैमिली थी वो भी कन्विंस होगी कि वाकई ये सारे जो एविडेंस है ना सॉलिड है, कंक्रीट है, फोरेंसिक है, वेरीफाइएबल है। और क्या ये बताता है कि इसने अकेले ने सब कुछ किया या इसके साथ कुछ शरीके जुर्म और भी थे? जो एक कॉमन सेंस कहती है कि एक बंदे का काम नहीं है, लेकिन ये एक बंदे ने किया है। एक बंदे ने किया, इसने इसका भाई जो था ना वो इससे थोड़ा उम्र में बड़ा था, लेकिन उसकी हेल्थ जो है इससे थोड़ी कम थी। उसकी धान पान था और ये ज़रा इसकी ज़रा हेल्थ ठीक थी। हाँ, इसकी हेल्थ ठीक थी, ये ज़्यादा एक्टिव था। वो थोड़ा उसकी नेचर भी थोड़ी डिफरेंट थी, उसकी बॉडी भी थोड़ी इसके वीक थी। और एक बात, दूसरी बात ये है कि वो तो ये तो ज़हनी तौर पे तैयार था कि मैंने ये असाल्ट इस तरह से करना है, उसको तो आइडिया नहीं था कि मेरे ऊपर असाल्ट होना है। तो इस वजह से इसका जो है ना इसने इनिशिएटिव लिया, इसको एज था, इसने वो उसको जो था ना रस्सी इसके अपने मोटरसाइकिल के पास रखी थी। जो रस्सी जो है उसके पीछे उसके खड़ा था, ये रस्सी गले में डाल के तो उसने पूरी ताकत से उसको दबाया, फंदा बनाया। तो वो जो है ना उसने शुरू में थोड़ी मज़ामत की है, लेकिन उसके बाद वो चूँकि उसका सांस ही बंद हो गया था, वो जो था ना उसके नीम भी होश हो गया। उसके बाद इसने जो है ना उसका गला काट दिया। ये एक्सट्रीम नफ़रत पे जाके इस तरह का अमल होता है रिजवान साहब, वरना अगर सिर्फ जान लेना मकसद होती तो शायद गला दबा के इसको सब्र आ जाता अगर उसका दम निकल गया था। ये गला काटना ये बर्बरियत है, ये वहशीपन की अलामत है। क्या इंटरोगेशन में इसने क्या कहा है कि क्या था वो नफ़रत का एलिमेंट जिससे इसको सब्र तब आया जब उसने इसका गला ही काट दिया? इसमें दो चीज़ें हैं। नंबर एक तो ये कि कत्ल करने के तो और भी तरीके थे, इसने ये क्यों अडॉप्ट किया? वो इसका मकसद तो ये था कि ये एक इसकी जो नेचर है ना इस क्राइम की, वो ब्लाइंड रहे, उस समझ में उस डायरेक्शन में इसको करने के लिए इसने ये सारा कुछ किया। हर मुजरिम ये समझता है कि मेरा ये जुर्म जो है कभी सामने नहीं आ सकेगा, मैंने इतना वेल प्लान्ड इसको किया है एग्जीक्यूट कि ये कभी सामने नहीं आएगा। लेकिन वो शायद भूल जाता है कि कुदरत है और जितना भी शातिर और चालाक क्यों ना हो मुजरिम, कहीं ना कहीं कोई ना कोई वो अपनी गलती ऐसी करता है जिस लीड को फॉलो करते हुए कानून उस तक पहुँच जाता है। और अब क्या समझते हैं क्या होगा? वालिद है, उसके 2 बेटे थे, एक दुनिया से चला गया। पुलिस ने अपना काम मुकम्मल ईमानदारी से, पेशावराना महारत से किया। चंद घंटों के अंदर कल्प्रिट को पकड़ लिया, उसके ख़िलाफ़ केस भी फाइल हो जाएगा। लेकिन अगर हम इसको एज ए सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान देखें, गांव की सतह पे देखें, तो एक बाप है जिसके 2 बेटे थे, एक कत्ल हो गया, एक ने कत्ल कर दिया। तो क्या अब कोई इस तरह का सीन चल रहा है कि वो बाप शायद अपने उस कातिल बेटे पे रहम खा ले या फिर केस को विड्रा कर ले इस तरह का? ये सबसे जो मिजरेबल कंडीशन है वो वालिद की है कि 2 ही बेटे हैं, एक कत्ल हो गया, दूसरे ने कत्ल कर दिया, अब उसको भी फांसी लगनी है। अब वो क्या करेगा, क्या डिसाइड करेगा? ये तो ऐसी सिचुएशन है कि बहुत ज़्यादा जो है ना ये बाप के लिए तो बहुत ही जो है ना मुश्किल सूरत हाल है। क्या डिसीजन वो करेगा? वो क्या सोचेगा कि दूसरा भी जो है इसको भी फांसी लग जाए तो दोनों बच्चे जो हैं। तो ये उसके अपने नर्व्स पे डिपेंड करता है, उसकी जो अपना जो है ना। और दूसरी बात इसमें जो है ना हमारा जो सोसाइटी है उसके ट्रेंड्स जो है ना उनका पता इससे चल रहा है कि एक दौलत के लिए सके 2 ही भाई हैं, एक भाई ने दूसरे को कत्ल कर दिया दौलत के लिए। ये सब एक वक्त था, आप क्योंकि थाना साहियां वाला ज़्यादातर रूरल एरिया है, आप यहाँ पे ऑपरेट कर रहे हैं, आप लोगों की नेचर से, यहाँ के मुकदमात की, यहाँ पे नेचर ऑफ क्राइम से आप बहुत अच्छे तरीके से वाकिफ़ भी होंगे। रूरल एरियाज़ में एक वक्त था जब कोई मौत होती थी और हादसाती मौत, कत्ल तो खैर बहुत बड़ी बात थी कुछ साल पहले तक। अभी इस तेज़ी से जो है ये कत्ल जैसी वारदातें हो रही हैं और फिर इस तरह के कोल्ड ब्लडेड मर्डर्स के, भाई भाई को मार रहा है, बेटा बाप को कत्ल कर रहा है, बाप अपनी बेटियों पे गोलियां चला रहा है। ये क्या है? हमारी सोसाइटी किस तरफ जा रही है? क्या आप समझते हैं कि इसकी बुनियादी वजह क्या है और उसका तदारुक कैसे किया जाएगा? ये जो हमारी सोशल फैब्रिक है ना, इसमें जो बिगाड़ आ रहा है, ये भी एक बहुत बड़ा इशू है। हमारे जो है ना दानिशवर हैं, जो हमारे जो सोशल लीडर्स हैं, वो इनके लिए ये भी सोचने की जगह कि ये कैसी जो हमारी सोशल फैब्रिक कैसे ख़राब हो रही है। अपना रिश्ते जो है उनका तकद्दस ख़त्म हो रहा है, वो जो दौलत की हिरस है जो वो ओवर पावर कर रही है। ये एक बड़ा जो ना सोशल एक बड़ा अहम जो है ना चीज़ है। तो इसमें हमें अपनी सोसाइटी जो है ना उसको जो बेसिक हमारी वैल्यूज़ है ना
उनको रीइटरेट करने की ज़रूरत है, उनको बताने समझाने की ज़रूरत है कि जो मटीरियलिज़म जो है ना, मटीरियलिज़म ये कुछ जो हमारा मीडिया जो है ना वो, और कुछ जो है को रातों रात अमीर होना, और जो है ना एक लाइफ जो है ना कंटेंटमेंट नहीं है, वो जो सब्र नहीं है, और जो है ना उसकी वजह से कुछ लस्ट है, लस्ट का एलिमेंट बहुत बढ़ गया है। ये हमारे सोशल इश्यूज़, सोशल प्रॉब्लम्स हैं, ये उनकी एक इंडिकेशन है। इसका भी तदारक जो है ना होना ज़रूरी है। नाज़रीन इकराम, इंस्पेक्टर रिजवान सुलेमान साहब हमारे साथ मौजूद थे, इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन है थाना साहियावाला के, और बता रहे थे तफसीलन कि कैसे पुलिस को इत्तला मिली एक ऐसी लाश की जो किसी जगह पर पड़ी थी और उसका गला कटा हुआ था। पुलिस पहुंची, क्राइम सीन को प्रिजर्व किया, तफ्तीश शुरू की, तो हैरान कुन तौर पर जो कल्प्रिट है, जो कातिल है, वो उसी मकतूल का सगा भाई निकला। एक वालिद के लिए ये बहुत नाजुक मुकाम था कि उसके 2 ही बेटे हैं, एक कत्ल हो गया, दूसरे ने कत्ल किया, और अब वो उस दौराहे पर खड़ा है जहां फ़ैसला लेना शायद दुनिया का मुश्किल तरीन काम होता है। आ रही है चाहे यूसुफ से सदा, दोस्त यहाँ थोड़े हैं और भाई बहुत। नाज़रीन इकराम, आज के प्रोग्राम में हमने आपको दिखाया कि कैसे फैसलाबाद के इलाके साहियावाला में भाई ने भाई का कत्ल कर दिया। नाज़रीन इकराम, क्या हम अपने रिश्तों में इतने शफ़ाक़ हैं कि हम रिश्तों का तक़द्दुस भूल चुके हैं? क्या वाकई में खून सफ़ेद हो चुका है? फ़ैसला आपका। शुएब अल्ताफ़ को टीम मुजरिम कौन के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।